बारिश है लेकिन वो इंथुजियाज्म रहना चाहिए ना आप लोगों में, है ना? Today, as a part of one more initiative, Central Training Placement Cell and School of Management Studies is jointly organizing this workshop on soft skill. Okay, so as you know that soft skill plays a very important role in our career. You have subjects that are based on soft skill, like you have employability. One of the paper is there for the undergraduate students, and soft skills are important in every field. It is not only that the management students require, whether you are from statistics, whether you are from computer science or any field, soft skill plays a very important role. Now soft skill is a very big domain. It includes your personality development, it includes the leadership, it includes the communication skill, it includes the stress management. There are so many things in the soft skill. So we are conducting this to improve your employability so that we can sharpen the axe, basically. Because in the pandemic, now everybody has become so lethargic, isn't it? So either in terms of academic, either in terms of communication skill. So that is why we have called Mr. Amit Ladda ji. So let me first of all brief about Mr. Amit Ladda sir. He is presently the director of Ladda Mathematical Academy, a leading coaching institute of CAT, CMAT and SNAP. You all know these are very national level exams to crack into MBA entrance. He conducts one aptitude exam for MBA entrance for the last 13 plus years. So Amit sir has an expertise in the fields of aptitude training for maths, BI, logic, vocabulary and so on. And sir is a specialized trainer in the field of interview techniques and GDs. So Amit sir is soon launching his pan-India ED platform and startup on the occasion of Ganpati festival, okay, known as Teacher Factory, isn't it? So sir has a reputation to catapult ordinary student into extraordinary student. Every year Ladda classes has been able to send students to top institute like I am Ahmedabad, I am Indore, I am Ranchi, I am Rohtak, Bellinger Institute and all the reputed B schools whatsoever. And Ladda class has done an aptitude training for more than 500 students. So this speaks itself what is the achievement of the Ladda classes and if you can see the growth of the Ladda. So sir has completed his MBA basically from Kumbha. Kumbha you might be knowing from Pune University. It is one of the renowned management institutes where the students aspire to do the MBA. So we are very fortunate. He is not only in this career academy, but looking his academic credential, he is very strong in that. Okay, so he has worked with the Milton Plastic as a research and development engineer. He became a production engineer in 2003. So he has worked as a visiting faculty for maths and BIN, data sufficiency and logic skills, isn't it? So sir, we have huge number of management students, almost 67. But due to yesterday we have informed them, but due to this rainy season and being Saturday also. So, but in future also we are going to continue the lectures like Monday, Tuesday. Once your launch is there, after your launch, once again we will conduct the session so that more students can take it. So, on behalf of School of Management Studies and Central Training and Placement, sir, I heartily welcome you for this session. So, I would like to felicitate on the behalf of CTC. We also have Pavitra Patil madam, management council membership, the management council membership. I would like to welcome you. Welcome, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, sir. कैसे हो? कैसे हो? Fine. अच्छा, first year? All of you? Yes, sir. So, आज मुझे 2 सेशंस मिले. Thank you university, thank you सरदार सर, team, all the team management members की एक opportunity देने के लिए कि आपसे मैं interact कर सकूँ और थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को. चलेगा नहीं चलेगा? कि कहाँ फंस गए हैं ना, जो आ रहा है ज्ञान देके जा रहा है ना. मेरे को 2 सेशन दिए ऊपर से, तो आप रे कितना तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे. चलेगा नहीं चलेगा? इंटरेक्टिव का मतलब टू वे कम्युनिकेशन. ओ माय गॉड, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है ऐसा? Sender and receiver both communicate for a particular message
गुड मॉर्निंग। तो कम्युनिकेट होना है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, पिच मैच नहीं होना चाहिए ऐसा? सेंडर और रिसीवर का पिच मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इक्विवेलेंट चाहिए, दोनों का मैच होना चाहिए। करेक्ट। तो इट्स नॉट जस्ट टू बॉडीज आर कम्युनिकेटिंग, बट पिच भी मैच हो गया तो मजा आएगा। यस नो? वैसे सर ने एसी भी लगवा लिया है, तो अभी बोर हो गया तो सो जाऊं। मैं इंश्योर करूंगा कि बोर नहीं होगा, ठीक है? सो फर्स्ट चलो, अच्छा तो लग रहा है। फर्स्ट ईयर है एमबीए का। यस नो? तो आई स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज कम्युनिकेशन क्लास है। यस नो? तो हम बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करते हैं। एमबीए में क्या करोगे आप, बहुत सारे पता होगा शायद। चलो ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या करने वाले अपन एमबीए में? यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया है, यस नो? और इन्होंने भी बोला है कि 2 वे कम्युनिकेशन रखना है। तो क्या लगता है आपको कि ये 2 साल में आप क्या करने वाले? यूनिवर्सिटी के एमबीए 2 साल में आप क्या क्या करोगे? इंटरनल स्किल्स। और कैसे? चलो वो भी पूछते हैं। अलग अलग सेशन में पार्टिसिपेट करके। ओके, और आपको तो जानता हूँ भी मैं, शायद मेरे ही स्टूडेंट हो, राइट? करेगा क्या क्या लगता है क्या करने वाले इस 2 साल में? सर प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे, लाइक टू एंटर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड वन हैज टू लाइक polish his skills as well as give some hard skill as well, learn some hard skill. पर आज तो मैं सॉफ्ट स्किल करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा, अग्री करते हो? तो एक काम करेंगे, अभी कोई भी अच्छा पॉइंट हो ना, तालियां बजाएंगे, चलेगा? प्रोफाइल बिल्ड करना है 2 साल में, यस नो? तालियां बजा देते हैं। प्रोफाइल तो बिल्ड करना ही करना है। सो प्रोफाइल बिल्ड कैसे होगा, या कॉलेज क्या क्या करने वाला है, यूनिवर्सिटी क्या क्या करने वाली है आपके साथ? Sir, they are going to organize various programs so as to like get the interest of the students. करेक्ट। जैसे ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये सुनो, पीछे भी कल भी एक था, उसके पहले भी एक था, ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे। सिर्फ प्रोग्राम अरेंज करने वाले हैं और भी कुछ करने वाले हैं? कुछ आइडिया है? वेल, बहुत सी बार ना हम ऐसी चीज में उतर जाते हैं, वो क्या करवाने वाले यही पता नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम जहाँ जा रहे हैं, हम हमारे लिए कि हमारे साथ अगले 2 साल में क्या होने वाला है, उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमने लेना चाहिए। यस नो? अगर मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो जाके पूछना। राइट? रियलिटी चेक में पहला पॉइंट मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को जो दिख रहा है इस क्राउड के साथ, हम पूछते ही नहीं। अग्रीड? हाँ, जो दे रहे ठीक है, जो मिल गया ठीक है, पूछना चाहिए यार। यस नो? आइडियली मेरा एजेंडा दूसरा था, बट जो मुझे दिख के आ रहा है कि हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते। जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें छीनना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, सिस्टम से लेना पड़ेगा। यस नो? कैसे लेंगे? पहली चीज, 2 साल में क्या करने वाले हैं इधर? हमने दे दी यूनिवर्सिटी को 2 साल। हालांकि करिकुलम में नो डाउट कोई इशू नहीं, यूनिवर्सिटी काम करेगी, मैं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई मेरा एजेंडा वो नहीं है। मेरा कहना है कि हम अवेयर थे क्या? विदाउट अवेयरनेस आगे बढ़े। यस नो? ओके, तो पहला काम करना 2 साल में क्या करेंगे, तो बहुत सारी चीज करने वाले। उसमें से ना आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट अपग्रेड करने की कोशिश करें। करेक्ट? उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है। उसमें एक एक्टिविटी होती है प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज। यस नो? जो आपको पीपीटीज बनाने होते हैं। और ना एक्चुअली जब मैं कल रात को ही बना रहा था पीपीटी, तो मैं बोला यार एक पहला पॉइंट तो मैं ये दे दूंगा बच्चों को कि पीपीटी बनानी कैसे। तो एक पीपीटी बनानी पड़ेगी, कोई तो टॉपिक देंगे, सर जाओ इस पे प्रेजेंटेशन करके आओ। ऐसे होता है सर? हम प्रेजेंटेशन करवाते हैं बच्चों से कि नहीं करवाते? यस नो? राइट? तो प्रेजेंटेशन करना होता है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि भैया पहले मैं उसको टॉपिक को पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। यस नो? और मैंने पुम्बा से एमबीए किया, वहाँ बहुत हार्ड लेसन लर्न किया था मैंने। हम इतनी गंदी पीपीटी बनाते थे,
पूरा की पूरा नेट से टेक्स्ट उठाने का, आप भी वही करने वाले हो, ये सुनो, और चिपका देने। और फिर पीपीटी कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो पढ़ के पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। सामने वाला बोलेगा भैया पढ़ना था तो मैं ही पढ़ लेता। सो फर्स्ट रूल, अगर आपको 2 साल में कुछ अच्छा करना होगा तो आपकी पीपीटी में बहुत लिमिटेड चीजें होनी चाहिए। सो मेरा लुक एट द होल स्लाइड हैज ओनली 1 पॉइंट। तो जब मैं बना रहा था ना, मैं बोला क्या करूं, कल ही रात को बैठ के बनाएगा। एजेंडा तो चाहिए ना, सिस्टम में मैं बात कर रहा हूं, कोई तो पॉइंट होना चाहिए मेरे पास। सो मैंने पहली चीज बनाई, यार अगर मेरी पीपीटी रहेगी तो लिमिटेड पॉइंट पे रहेगी। पीपीटी को देखने के बाद इरिटेट नहीं होना चाहिए। बोर होते यार, ऑलरेडी इतनी बोर करने वाली चीजें सिस्टम में, अपन क्यों बोर करें और लोगों को? यस नो, बोर होते कि नहीं? अब मैं लिखता रियलिटी चेक, पहली लाइन दूसरी लाइन ऐसा मस्त भर के लिखता है, तो छोटे छोटे पढ़ना भी जान पे आता था। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स करोगे तो फिर मैं जब वो बना रहा था ना, तो मैं बोला ये पॉइंट तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि मैंने नहीं सीखा मेरे एमबीए में। हालांकि मैंने पुंबा से एमबीए किया, वन ऑफ द रिनाउंड इन महाराष्ट्र फॉर एमबीए, ये सुना आप सब जानते हो, बट नहीं सीखा मैंने उस स्टेज में। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ है कि यार ये स्किल्स बहुत मायने रखती हैं। प्रेजेंटेशन होगा शुड बी व्हाट इज ओनली नेसेसरी एंड अपीलिंग, व्हाट इज ओनली नेसेसरी एंड अपीलिंग। उतना ही टेक्स्ट, ज्यादा पिक्टोरिकल रहेगा, अच्छा बट बहुत ज्यादा भी नहीं। समझ रहा है, नहीं समझ रहा? सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो अगली बार पीपीटी रहेंगे, रिक्वेस्ट होगी कि बहुत सारा यहाँ होना चाहिए, ना कि स्लाइड पे। और यहाँ कब आएगा? स्लाइड शेयर से नहीं होता, यहाँ नहीं आता स्लाइड शेयर से। I'm telling about what usually we do. अच्छा आप अच्छा शॉर्टकट है जिंदगी में, सब बना है, यूज करना चाहिए। क्या लगता है आपको, शॉर्टकट यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। Be smart. वो भी बहुत भयंकर चीज है, स्मार्ट होना। Be smart with the crisp words rather than using lots of words. ओके, मैं थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, बट मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पे। हाँ, स्मार्ट वाले पॉइंट पे मेरा कुछ पर्सपेक्टिव है उसको लेके, कि पहले उससे शुरू करें, रियलिटी चेक पेपर बाद में जाएंगे। राइट, इंटरेक्टिव रखना है। राइट, तो सर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने रिस्पॉन्ड करना चाहिए, फिर हम अपने एजेंडा पे वापस आ जाएंगे। और कितने लोगों को लगता है हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए और स्मार्ट वर्क करना चाहिए? यस, नो? कैन आई सी हैंड्स रेज? हाँ, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करने चाहिए। बैलेंस द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बैलेंस द हार्ड, ओ माय गॉड, तराजू काटा होता है। अच्छा, मस्ती की चलेगी ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का रखेंगे यार, माहौल सीरियस नहीं बनाना है। चलेगा नहीं चलेगा? आप भी मस्ती करो, सर को भी चलेगा। मैं ले लिया परमिशन। चलेगा नहीं चलेगा? राइट, सो बैलेंस कैसे करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का? सर जैसे कि अगर हमें, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि तराजू, अभी लोग बोलते हैं कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट जाना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन उस पर और लोग एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि देखो जो इंसान खेत में काम कर रहा है वो भी तो हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड वर्क थोड़ी हमें ज़्यादा इनकम देता है करके। लेकिन जो हमारा कंपैरिजन होना चाहिए वो हमारी इक्वल क्वांटिटी के साथ होना चाहिए। जैसे कि अभी हार्ड वर्क का कंपैरिजन उस मतलब फिजिकल हार्ड वर्क के साथ ही होना चाहिए, और मेंटल हार्ड वर्क का कंपैरिजन मेंटल हार्ड वर्क के साथ ही होना चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि हमें स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क हमें जो, जैसे कि अभी क्राइम और इनइक्वालिटी होती है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, अगर उन्होंने स्मार्ट वर्क ही किया होता है कि नहीं यार मेरे को स्मार्ट वर्क करना है और मेरे को सिर्फ ये करना है, तो वो अपनी फील्ड को आगे कैसे बढ़ाते हैं? एक तालियां बजनी चाहिए। क्या बोला उन्होंने? अरे क्या बोला उन्होंने? बजा दी तालियां सिर्फ बस। राइट, I'll come back to what you said, right? I have a perspective of looking at it. देखो, कोई भी चीज ना एक डायरेक्शन नहीं होती। अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, हम अब ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन तक आपका सिलेबस, आपकी लर्निंग मेथोडोलॉजीज स्ट्रक्चर्ड होती है।
क्या भैया इतना ही एजेंडा है, आपने इतना ही सीखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन ये स्टेज होती है जहां हम हर चीज को अनस्ट्रक्चर्ड लेवल पे जाना पसंद करते हैं, डाइवर्स जाना पसंद करते हैं, राइट? तो लाइफ में आई होप सब अग्री करेंगे, कोई भी सिचुएशन को एक डायरेक्शन होती है कि मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं, मल्टीपल है। तो जितना हम पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने आप को डाइवर्स लेके जाएंगे उतना अपने लिए अच्छा या बुरा? अच्छा। तो कोई भी पर्सपेक्टिव पे बहुत सारे व्यूज होते हैं। तो इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वाले फिलोसॉफी पे मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, चलेगा नहीं चलेगा? क्या इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? बोलते रहेंगे, आपने बोला था वो टू वे कम्युनिकेशन, करेक्ट? क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? इनका कहना है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का क्या चाहिए, और उनका दूसरा पॉइंट था कि अगर आप फिजिकल हार्डवर्क की बात करें तो उसके साथ उसका कंपैरिजन चाहिए, अब मेंटल हार्डवर्क की बात करें तो उसके साथ उसका कंपैरिजन चाहिए। यस नो? ऐसा इनका पॉइंट था, करेक्ट? ध्यान रखेंगे, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे बड़ी स्किल्स है लिसनिंग स्किल्स, जो हम सुनते ही नहीं किसी को। तालियां बजनी चाहिए यार इस चीज पे यार। नहीं तो यार क्या है? अब और तालियां बजी मतलब अपन जग रहे हैं। वो ना मेरा दोस्त ना मुझे वो गदर पिक्चर लेके गया है, गदर 2, रात का 10:30 का शो, दिन भर का लोड था। मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, 12 घंटे कोचिंग करता हूँ 24/7। वो इज लाइक हार्ड कोर फैन, टिपिकल ऐसे पैशनेट ऐसे ना भारत माता की जय वाला वो मेरा दोस्त है, लड्ढा चल, मतलब हम ऐसे सरनेम से बुलाते एक दूसरे को, तो वो लड्ढा चल। मैं बोला यार क्या तू 10:30, अरे चल बहुत भारी है, सनी देओल है क्या मारता पाकिस्तानियों को तू देख। मैं थका बैठ गया, मैं उसके साथ 15 मिनट के बाद आ गई मेरे को नींद। जैसे सनी देओल करता था वो मेरे को अमित सो जाता था। तो तालियां बजाने का फीलिंग है, सो रहे हैं ना उनको जगा देना है, चलेगा नहीं चलेगा? राइट, अग्री? राइट, तो बहुत बढ़िया। सो थोड़ा सा आपका और जानना चाहते हैं, इतने टैलेंटेड, इतने आज 50-60 ब्रेन्स बैठे थे सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको भी कंट्रीब्यूट करना होगा, यू कैन कंट्रीब्यूट। हाँ, इट्स ओपन जनरल डिस्कशन है, सॉफ्ट स्किल है, सब सॉफ्ट है, नथिंग हार्ड इन इट, राइट? और कम्युनिकेशन एक एजेंडा मुझे मिला है, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग। सो पहला पॉइंट जो मैंने रेज किया कम्युनिकेशन में कि अगर आप पीपीटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आइडियाज, इट शुड नॉट बी क्लटर्ड, इट शुड बी सिंपल, सोबर, डिसेंट। पॉइंट अपने दिमाग में होना चाहिए। स्मार्ट वर्क का तरीका स्लाइड शेयर से उठाने, ठीक है? तो वहां से फिर मैं थोड़ा डाइग्रेस हो गया, मेरे को रियलिटी चेक बतानी पड़ा, आई कम बैक टू दैट। बट हम स्मार्ट वर्क का पॉइंट अब खत्म ही करते हैं, तो बहुत ही हो गया मेरे साइड में, राइट? पर मैं आपके साइड में जानना चाहता था कि आपका कुछ विचार है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के बारे में? ऐसी कोई चिड़िया होती है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क नाम की? तो इनका कहना था थोड़ा होना चाहिए दोनों, कितना कौन सा होना चाहिए, कितना कौन सा होना चाहिए, कैसा कुछ आइडिया? दोनों कैसे? इसे स्मार्ट यानी हम पुरानी क्वेश्चन पेपर फॉलो करते हैं, हाँ। तो हमें पता चलता है कि यार इसी एग्जाम में तो हम पुराने क्वेश्चन पेपर ही स्मार्ट बोर्ड में करेंगे। सर आपको स्मार्ट बनाने को बोल रहा है, राइट? आप स्मार्ट बनो। सॉरी यार, मेरे को कुछ शैल आई बी लिटिल ब्लंट? चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, मेरे को किसी को कहीं नीचे दिखाना नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं दूर दूर तक, बट कुछ रियलिटी चेक्स रहेंगे यहाँ पे सबके लिए रहोगे, मैं भी उसमें का एक पार्ट हूँ, ठीक है? तो रियलिटी चेक रखेंगे, चलेगा नहीं चलेगा? बाय द वे अभी तक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इंटरेक्टिव? कितनी बार हुआ है कैसे एंगेज होते हैं यार अपन चीजों के साथ, और सोए को भी जगाते हैं, अभी तो वो सुन रहा है, राइट? सुन रहा है। तो या इस साइड से सुनना चाहूंगा, आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या फिलोसॉफी है? ये फिलोसॉफी मेरे हिसाब से, हाँ, क्या होता है, कितना होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी करो। condition, problem that you want to solve depends on an approach, what will be your approach to solve that particular problem. Could be what you say.
What's your aspect on that? I'll get back. पर मेरा पहला कंसर्न है कि आपने इतनी चीजें बोल दी कि आधों को जेपी नहीं है। और क्योंकि जेपी नहीं इसलिए उन्होंने क्या नहीं बजाई। तो मैं चाहूंगा कि भाई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन ये काय पे डिपेंड होती है, सर बता रहे हैं हमें। सर कैन आई नो योर नेम? हर्षदीप सर हमें बताएंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कौन से पैरामीटर पे डिसाइड होता है। चलेगा नहीं चलेगा? सर प्लीज। So it depends on person to person. इट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा। यस, सिचुएशन, Problem is that प्रॉब्लम, condition, कंडीशंस, tools you have, टूल्स यू हैव, many many others. others, right? तो यार अच्छा पॉइंट बोलने के बाद अपन मैं वापस बोलता हूँ, सर ने क्या बोला? Oh my God! अभी थोड़ी जोर से तालियां बजानी पड़ेगी, उठाना पड़ेगा ना, ये तो गदर 2 होगा, तेरा मेरा एक जैसा, right? Well, from my perspective, स्मार्ट वर्क नाम की चीज ही नहीं होती। There is no concept called as smart work. एक मिसकंसेप्शन है स्मार्ट वर्क का कि स्मार्ट वर्क इज कटिंग द सिस्टम, शॉर्टकट मारो, राइट? और बहुत सारा उसका मिसअंडरस्टूड मीनिंग है चीटिंग। शॉर्टकट बोला तो फीलिंग है यार कैसे चीट करूं, प्रेजेंटेशन करना है स्लाइड शेयर यूज कर लेता हूं, बट इनडायरेक्टली हम उस पूरे एजेंडा पे क्या मार रहे हैं? स्मार्ट वर्क के नाम के अंदर चीटिंग कर रहे हैं, राइट? स्मार्ट वर्क नाम की कोई चिड़िया ही नहीं होती है दोस्तों। स्मार्ट वर्क लोग क्यों बोलते रहे स्मार्ट, क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि वो जो बंदा काम कर रहा है ना, वो इतना काम कर रहा है, इतना उसमें घुसा पड़ा है, इतना अंदर तक गया है कि अब उसे वही काम करने का बेटर तरीका दिख रहा है। यस नो? क्या तालियां बजनी चाहिए? बजाओ यार, कोई नहीं है। हम हर बार थोड़ा ना हेजिटेट करते हैं। लिव लाइफ लाइक किड, ऐसा मुझे बहुत बिलीव होता है। बड़ा नहीं होने देना अपने आप को, होशियारी से होना, और अंदर का बच्चा नहीं बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो फिर आप गाना गाते हो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, सुना है ना? गिव मी अनदर चांस, क्या बात है। वैसा होने नहीं वाला दोस्त। हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क, यही रियलिटी लाइफ। पहली रियलिटी चेक, लोग हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते। Your brain takes you to the comfort zone itself. It don't want to take you out of it. That's why they don't want to work hard. That Correct. is psychology. कि हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी, हमें अपने आप को कैसे रखना पसंद आता है? कंफर्टेबल। क्योंकि डिस्कंफर्ट में रहना, पैनिक में रहे तो चीजें बनेंगी भी, चीजें बिगड़ेंगी भी, दोनों साइड में जा सकती है। बन गई तो ठीक है, बिगड़ी ना तो क्रिटिसिज्म आता है। पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, सर डांटेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, फलाना ढिमका, और आप अपने एज पे रहते हो यार, ऐसे वो फीलिंग हैंडल नहीं करते आती। पर एक बात बताओ, जितना आप कंफर्टेबल हो ना, उतना आप ग्रो नहीं कर रहे हो। जितना आप अनकंफर्टेबल हो, उतना आप ग्रो कर रहे हो। यस नो? सो अगर आपको ग्रोथ चाहिए अगले 2 साल में, तो अपने आप को ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालो कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो। यू शुड बी इन वॉर जोन ऑलवेज। पहला वॉर जोन, मेरे साथ 2 साल में क्या होने वाला है, पिक्चर क्लियर करो। Shall I share your story? स्टोरी सुनना पसंद करोगे? अच्छी लगती है? यस नो? मेरी ओरिजिनल स्टोरी, मेरी खुद की लाइफ, ठीक है?
मेरे MBA डेज की स्टोरी, तुम्हारे जैसा फीलिंग आ रहा है मेरे को तो एकदम, है ना, राइट। मैंने MBA किया डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुंबा से। आई होप सबको पता होगा, इट्स वन ऑफ द वेल रिप्यूटेड। तो फर्स्ट ईयर खत्म हुआ भाई, और मेरी खुद की एक एक्सपेक्टेशन थी कि MBA से मुझे कुछ तो चाहिए। एक साल हुआ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, रोज आ रहे वो रजिस्टर हलाते वो सर को सुन रहे, वो स्पीकर आ रहा, आई डोंट फील लाइक आई एम लिविंग। बहुत कुछ कर रहा हूं, आई एम लिविंग ऑन द एज, फील ही नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फिर ये फीलिंग और स्ट्रांग है, यार ऐसा MBA नहीं करना था। मेरी खुद की बात कर रहा हूं, इरिटेट हो रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं अंदर से। हाँ, फिर बोला कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं। बोला क्या करेंगे, क्या सोचा होगा मैंने, रोज रूटीन हो गया यार, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं है, वही आ रहे जा रहे, वही आ रहे, इसके लिए थोड़ी MBA करना था। क्या सोचा होगा तुमने, क्लास बंक करो, वो तो ऐसे भी रूटीन में ही करते हैं यार, नया कुछ नहीं था उसमें। You said ना you were regular. हाँ, मतलब रेगुलरली बंक भी करता था मैं। So I was regular in bunking as well, right? Anyways, so मैंने सोचा यार अब कुछ भी हो जाए, हारा तो हारा चलेगा, IIM के कंपटीशन में पार्ट लेना, पुंबा किधर, IIM किधर, right? Agreed? Reality, right? So मैं डिस्टर्ब था बहुत भयंकर। मैं बोला अब जो होगा हारेंगे चलेगा, IIM जाना है, ऐसे नहीं गए ना, ऐसे जाना है। अंदर का वो फ्रस्ट्रेशन था मेरा, गया भाई। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस समय लग्जरी नहीं थी कि मेरा खुद का लैपटॉप रहे, ठीक है। तो आई यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट थ्रू आवर इंटरनेट लैब, ठीक है। मैं भी बहुत सारे लिमिटेशंस लेके आगे बढ़ा। अच्छा क्लियर पिक्चर हर एक को शुरू से नहीं मिलता है, आपको मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए, नहीं मिल रहा है फाइट आउट करो, रास्ते निकालो, आगे बढ़ो, बट बी अनकंफर्टेबल फर्स्ट। मैं अनकंफर्टेबल हुआ, मैं बोला अभी जाते हैं IIM के इवेंट में, पेपर प्रेजेंटेशन तो करके आए। गया भाई, सर्च किया, इट्स मंथ ऑफ सितंबर कि IIM इवेंट्स, उस समय 6 IIMs थे, अभी ये नए पिछले 7-8 साल से IIMs बढ़ गए मोदी जी के बाद। तो सारे IIMs के इवेंट खत्म। फिर बोले चल IIM नहीं, SPJ, MDI, IIMT, दूसरे बड़े कॉलेजेस देखते, KJ सोमैया, वो भी खत्म। अब क्या करें, उत्ते में एक कॉलेज मिला भी मुझे, टैपमी मणिपाल, TAPI मणिपाल, आई होप सुना होगा आपने। वहां का था, 3 डे वेट्स था, 3 दिन का उनका एनुअल गैदरिंग था, जिसमें आप पेपर प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान, मिस्टर टैपमी, मिसेस टैपमी, एड मैट, स्टॉक मार्केट, 3 दिन पावर पैक प्रोग्राम था। कर दो अप्लाई, like I want to be a part of your annual event, can you guide how to do it? मुझे पता नहीं था कैसे बात करूं, क्या करूं, नहीं पता था, सच्ची में नहीं पता था, समझ रहे हैं। लिख दिया मेल, हो गया। 5 दिन बाद उनका रिप्लाई आता है, ओके यू कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट, इट्स अ 3 डे इवेंट, यू कैन कम इन अ टीम ऑफ 5, आपका 1 साइड का फेयर हम देंगे, ठीक है, और तो आपका 3 दिन का AC का रहना, आपका चाय नाश्ता खाना, रात का डिनर, हाई टी, सब हमारी ओर से, कॉलेज डेज में। एंड यू कैन कम इन अ टीम ऑफ 5, कॉलेज डेज में एक साइड का आना जाना वो दे रहे हैं, AC में रहना, चाय ना, जाओगे कि नहीं जाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। शायद 150 रुपया लगा था हमको एक सेट के टिकट का। मैंने जस्ट
ऐसे आइडिया मेरे दोस्त को शेयर करना कि 5 की टीम, मुझे पता होने के पहले लोग रेडी। अच्छा जुड़ गए क्या? मेरे को चॉइस भी नहीं था कि किसको लूं, मैं जस्ट शेयर करना, ऐसा ऐसा मेरे को आया है, जुड़ गए। फिर भाई हम गए टुवर्ड्स नवंबर था, मिड नवंबर में इवेंट था उनके यहाँ। हम ट्रेन से जा रहे थे, सब 5 दोस्त एक दूसरे को बोल, अरे फाड़ के आएंगे रे टैक्मी वाले को अपना टशन, है ना अरे अपन तो मतलब सब एक दूसरे को बोल रहे। उस एक 4 दिन पहले जितने मैगजीन है जीके के लिए, क्योंकि उसमें ना क्विज कंपटीशन भी थी, क्विज ऑन द बीच नाम का, और ऑसम पढ़ना, ठीक है, क्विज ऑन द बीच नाम की चीज थी। मौला सब लोग अपने मैगजीन निकाल रहे हैं, मैं पढ़ता, तू ये पढ़ ले, तू ऐसा, एकदम लास्ट मिनट मैनेजमेंट कैसे रहता, लिटरली पहुंचे मैं पणजी रेलवे स्टेशन, पहली बार भारी फीलिंग आई अंदर, ऐसे लोग ना अपने लिए खड़े थे, पुम्बा स्टूडेंट्स। कितना बहुत आला किसी ने। इवेंट ऑर्गेनाइज करना तो सामने वाला जो आएगा उसको वाव फीलिंग के सिवा जाने नहीं देना। तालियां बजनी चाहिए इस चीज पे। कॉलेज का इवेंट हो, अपने घर का इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, सामने वाले को अगर आप वाव दे देते हो वो आपको भूलता नहीं। मैंने भूला नहीं वो इवेंट आज तक, 2005 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज 2018 साल बाद भी ऐसे दिख रहा है मेरे आंखों के सामने चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यार। कार खड़ी थी हमारे लिए, वहां से 30 किलोमीटर पे टैपमी गांव है। टैपमी गांव कैसा है, 5,500 की उसकी लोक संख्या, उसमें से 4,500 बच्चे, 500 फैकल्टी और 500 नॉन टीचिंग स्टाफ। वो पूरा गांव ही सिर्फ बच्चों से बना है। क्या माहौल। फिर गए भाई होटल में, मस्त एसी रूम था, सब सोए, सुबह उठे गए। अब टैपमी मणिपाल ये उडुपी से 10 किलोमीटर दूर है। उडुपी पता है, उडुपी शेफ सुने अपने, पूरे इंडिया में उडुपी जो खिलाते हैं शेफ उस गांव से आते हैं। खाने का टेस्ट, शुरुआत सर नाश्ता था, क्या बताओ, वो चटनी सी वैसे सिर्फ पूरी चटनी चल रही थी। अगर पसंद आए तो अपन का और पानी सजुम, मैं वो फीलिंग ही पहला स्टार्ट ही, वाह, वसूल 3 दिन फ्री में। पहला इवेंट स्टॉक मार्केट, हमको नकली पैसे दिए गए। केजे सोमैया से बच्चे थे, IMT गुड़गांव से बच्चे थे, तो पैन इंडिया से बच्चे आए हुए थे। हाँ, स्टॉक मार्केट। और मजे वाली बात क्या थी कि वो जो इवेंट जहां खिलाया जा रहा था, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के 3 राउंड का गेम था। आपको कुछ नकली पैसे दिए जाते हैं, आपको सिचुएशन दी जाती है, आप इन्वेस्ट करो, पूरा गेम वो सिमुलेटेड गेम था। सिमुलेटेड समझते हैं, राइट? किसी को कुछ करना है ना, तो स्टॉक मार्केट का सिमुलेशन गेम बना लो, हर MBA कॉलेज में बेच के आ जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ। यस तो जहां देखे पैसा दिखना चाहिए, जहां देखे धंधा दिखना चाहिए। यस नो, कौन सा गेम है, कौन देता, अच्छा ये गेम है क्या, ऐसा है क्या, ओके। हर कॉलेज को जाने 5,000, कितने कॉलेजेस है MBA के, कुछ आइडिया इंडिया में? हर गली में 10,000 कॉलेज समझते हैं, 5,000 इंटू 5,000 गणित आता क्या, कितना? 5,000 इंटू 5,000 55, 250। तो 5, ये तो बहुत भयंकर है। हार्डवर्क ऑन कैलकुलेशन, 5,000 इंटू 5,000 20। इधर आ तू, गटर में जाके डूबना ना, तो MBA कर रहा है। 2,50,00,000। सॉरी यार, मेरे को थोड़ा मैं एलिमेंट्स में आ गया ना कि मेरे बच्चे जैसा फील होता मेरे को, तो मैं गाली दे देता। गाली मतलब वो डांटता वैसे। 2 करोड़। हम MBA से पास आउट होके कितना खुश हो रहे पैसे लेके, 15,000 का पगार,
20,000 का पगार, एक कॉन्सेप्ट उठाओ, 10 चीजें करने की जरूरत है जिंदगी में, एक कॉन्सेप्ट उठाना, घुस जाना। इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, दूसरा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती तुमको। पर जो घुसे अपने से बेस्ट दूसरा कोई नहीं। यस नो? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस प्लान का एक डेमो दे रहा हूँ तुम्हारे बच्चों को, गैदरिंग के लिए, नॉलेज के लिए आप खिलवा सकते हो। किसी भी सर को समझाया, ओ कितने का है, 5,000, कभी भी कॉलेज फंड सैंक्शन करता है। 20,000 का पगार चाहिए, 4 कॉलेज महीने में कर, महीने का 20,000 कमा रहा है। 50,000 चाहिए, 10 कॉलेज महीने का कर, फिर भी बादशाह, टाइम की टाइम। हेलो, कम्युनिकेशन, रियलिटी चेक। हम इतने नॉनसेंस क्लीशे में अटके पड़े हैं कि जिसकी लिमिट नहीं। अग्री? फिर आते अपनी स्टोरी पे। मैं टैपनी गया था, है ना, स्टोरी से भटक गया मैं थोड़ा सा। अच्छा, तो स्टोरी पे भाई पहला राउंड था, तो हर राउंड के बाद रैंकिंग देते थे। ऐसा कोई गेम होता है, हमें वहां जाके पता चला था, सॉरी टू से, उम्बा के होने के बावजूद। तो इसका स्कोप है मार्केट में। सच्ची बता रहा हूं, आपने खेला है ऐसा कोई स्टॉक मार्केट का गेम? नहीं खेला है? एक जन ने खेला होगा, मैंने तो नहीं खेला था, जब उसके पहले तक तो नहीं खेला था। तो स्कोप है इस प्रोडक्ट को, मार्केट में स्कोप है। जब तक वो स्कोप खत्म होता, दूसरा प्रोडक्ट ला लेंगे, राइट? एनीवेज, आई कम बैक। पहले राउंड में भाई हम 4th पोजीशन पे दौड़ा, कुछ तो कर लेंगे। तीसरे राउंड तक हमारा 13-14 नंबर था। पहले राउंड में, पहले गेम में हारे गए, पहले कंपटीशन। फिर जहां इवेंट था ना, वहां से दूसरा इवेंट, फिर स्नैक का ब्रेक था, और फिर दूसरी जगह इवेंट था। पर मैं जहां से गया ना यार, आते समय यहीं से आए थे, यहाँ कुछ नहीं था। और जब मैं आया, अगला इवेंट सेटअप था वहां पे, इतनी लिमिटेड जगह में इतना ऑसम मैनेजमेंट किया। ऑल इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय स्टूडेंट्स। ऑल इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय। यार तुम में ताकत कम होती कि बहुत भयंकर होती है। अगली बार जो भी इवेंट आएगा ना, एंकरिंग सर को नहीं करने देंगे, सर मैं करता हूं। क्या होगा? 2 बार गलती होगी। कितनी बार? तीसरी बार अच्छा होगा, डर निकल जाएगा। अगली बार सर किसको कॉल करेंगे? किसकी वैल्यू बढ़ी, राइट? अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो ऐसा करोगे नहीं, पर अगर आप अनकंफर्टेबल रहने को तैयार हो तो आप जाओगे सर के पास, सर इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगा, वोट ऑफ थैंक भी मैं करूंगा, कंडक्ट मैं करता हूं, प्रोग्राम रन कैसे करते हैं। ये बैठे बैठे कॉलेज दे रहा है अपने को अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत दुख लगा कि जब मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कौन पढ़ रहे थे? सर पढ़ रहे थे। ये एक्टिविटी किसकी होनी चाहिए? अगली बार तो बोल देने का जाके, सर कोई भी गेस्ट आएगा मेरे को दो। हाँ, be uncomfortable। Sunday Saturday है ना, वो दोनों प्रोग्राम खत्म। MBA is not theoretical, guys. Yes, sir? तालियां बजनी चाहिए सबको। क्या है ना? MBA theoretical है? MBA theoretical है सर? हमने बना दिया उसको। अभी मैं सर से बात कर रहा था, बोले सर हम करना चाहते, बच्चे हलते नहीं है। कितना टोचन दे दो, टोचन की भी लिमिट हो जाती है। सर यही बोला, एकदम सही है ना, लाइव, एकदम सॉफ्ट स्किल, राइट? अगली बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल डिग्निटरीज हियर, आपने नहीं करना। और होने के बाद केबिन में बुलाना, उसके अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट का उसको क्या देना है? एनालिसिस देना। सिर्फ कर ले भाई, हो गया, गलती हो गई, चलना। अब हम इतने बड़े हुए कि अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यस नो? यस। अगर मैं खड़ा हुआ तो पूरे जलगांव में बेस्ट MBA बच्चा किसका होना चाहिए? यूनिवर्सिटी का होना चाहिए।
बात करेगा, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट नहीं क्या मेरे को मिला स्पंजी स्टेशन पे, और बहुत भारी फील हुआ था। कौन दिया? टीचर नहीं आया था, वो इनका ही बच्चा था। रात को 1:30 बजे हम पहुंचे वहां, 1:30 बजे लेके खड़ा था। कमिटमेंट, सर्विस। दूसरा इवेंट है क्या मैनेजमेंट, सारा बच्चों ने मैनेज किया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 दिन का कम से कम बजट उनका 2005 की बात है, रफली 75 लाख रहेगा, 70-75 लाख का बजट होगा सर। 250-300 3 दिन खाना पीना रहना, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, सारे स्पॉन्सरशिप बच्चों ने जा के लाए। तो मुझे समझा, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या? रियलिटी चेक। तो जिंदगी ऐसी भी चीज आती है, रियलिटी चेक। आर यू ऑल विथ मी? Yes. फिर भाई दूसरा इवेंट, मैं इतना और रहा था ना, पहले जब मैं उतरा पंजी स्टेशन से, एक इवेंट, दूसरा इवेंट का मैनेजमेंट कुछ नहीं है, इतना स्मूथली अरेंज हो रहा है, कोई चिल्ला पुकार नहीं। उनके बच्चों में आपस में जो अमेजिंग कोऑर्डिनेशन था, पहले दिन से बनता क्या? कोऑर्डिनेशन पहले दिन से बनता है? नहीं। उनके सीनियर्स जुड़े, काम किए, 10 गलतियां हुई, फिर गलतियों से सीखे, अरे ऐसे नहीं करना, इस तरीके से बोले झगड़े होते हैं, संभालना है ऐसे, सर का ऐसा रिक्वेस्ट लेटर भेजना है, डॉक्यूमेंट ऐसे करने हैं, कैश मेमो सर से ऐसे रेज करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सीखे, सब करेंगे। और 60-70 लाख की स्पॉन्सरशिप लाना, लीवाइस, रैंगलर, क्या क्या, बहुत डायनामिक्स है। मैं बोला कहाँ मैं पुम्बा में फंस गया, ऐसा जीना चाहिए था। दूसरा इवेंट हारा, खाना खाए। तीसरा इवेंट हारा। चौथे इवेंट शाम तक हमारे शोल्डर्स कितने एंथुसियाज्म से है ना। फिर रात को ना भाई खाना ही ना हुआ, उन्होंने मस्त कैंप फायर रखा था। कैंप फायर समझता है? तो मस्त आग लगाते, बच्चे बैठते, पूरे ऐसे 100-150 बच्चे थे जिनको आना आएंगे, ओपन था वो, ऐसे कोई कंपटीशन नहीं, और गाने बजाना, धमाल, मास, जिंदगी जी। उधर एक लड़का आया है, रॉकेट लिया ग्लास में, मशाल ली, ऐसे आग उड़ रही। देखा आपने वो चीज होते हुए? मैंने पहली बार मेरी जिंदगी में रियलिटी में देखा इतना नजदीक से। ऐसा भी होता है, बच्चे ऐसा भी एंजॉय करते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, और हम पाचो। वहाँ और एक बड़ा लेसन मैंने लाइफ का सीखा, फेलियर से सीखो, उसे कैरी मत करो। हम हमारा फेलियर को क्या कर रहे थे? बहुत लंबा कैरी करे। वो जो मोमेंट था ना सर 2 घंटे का, हम एंजॉय कर सकते थे, सब पाचो, पर हम वो कैरी कर रहे थे, हार गए। 2 घंटे एंजॉय करते ना, नाच रहे थे बच्चे यार, कोई चिमिल भी जाती है, अपन गाने भी गा देते नहीं, कुछ भी होगा यार, you never know, नहीं। बहुत बड़ा लेसन था। डोंट ड्रैग योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन। छोड़ो उसको पीछे, हल्का बनाओ, नई गलतियों के लिए रेडी हो। यस नो? बहुत करना पड़ता है इसके। फिर दूसरे दिन तो बुरी तरह हारे हैं, तीसरे दिन की बोलने की जरूरत नहीं, राइट? लास्ट का उनका इवेंट था क्विज ऑन द बीच। क्या फंडा था? दोपहर को 2-2:30 बजे हमको टैपमी मणिपाल से लेके गए हुए उड़पी के एक बीच पे। वहाँ पहले बस थी उनकी, बस में हम बैठे, वहाँ पे लेके गए, और वहाँ बीच वॉलीबॉल मेरे जिंदगी में पहली बार खेला। मैं बीच वॉलीबॉल सुना है आपने? कितना हमारा डायरेक्ट लिमिटेड लाइफ था। मस्त उन्होंने बॉल अरेंज किए, नेट अरेंज की हुई थी, किसको बैडमिंटन खेलना है, किसको फुटबॉल खेलना है, किसको बीच वॉलीबॉल खेलना है, ऐसे। और उसमें 2-3 लड़कियां थी जिनके पास ऐसे गोरे थे, वो आती थी, ये लीवाइस का टी-शर्ट, जीन्स, जैकेट, मेरे को साला मिला नहीं यार अपने को, बताया भुक्कड़ जैसे यार, मेरे को भी चाहिए। देखिए और बस हंसी, बेशरम, जिसने की शर्म देख रहे मेरे को चाहिए, बच्चा, एकदम बच्चा। उसने दिया डिवाइस का, मैं उड़ा मारते मारते अपने गुरु को, क्या
सब मांगने लग गया मेरे को, ओ देख मतलब उठ। फुल एंजॉय किया मैं। शाम को फिर ये 2-2.5 घंटा एंजॉय हुआ। शाम को इंडिया का सेकंड बेस्ट क्विज मास्टर। देखो जब आप अच्छा करते हो ना तो आप हर एक चीज को फिर क्या एक्सपेक्ट करना शुरू करते हो। इंडिया का सेकंड बेस्ट क्विज मास्टर उस समय उन्होंने लाया था। 3 राउंड का गेम था, क्विज ऑन द बीच नाम ही था, बेस्ट इवेंट उनका, पिनैकल इवेंट। बीच पे क्विज खिला रहे थे तो सो बड़ा सा स्टेज था, 350-400 चेयर्स लगाई हुई थी और पहला राउंड था 25 क्वेश्चन का और उस समय मोबाइल का लग्जरी नहीं था। तो भाई पेपर आया, तीसरे मिनट बाद मैंने ऊपर देखा और मेरे दोस्त के पास देखा, वो भी मेरे पास देख रहा था। अब तो समझ रहे हो क्यों देख रहा था। राइट सो तीसरे राउंड में जो फाइनल डायस पे पहुंचे थे ना बच्चे, तो वो जो क्विज प्लेयर था वो ऐसे 4 इमेज दिखाता है, झुक 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 और इधर बजता टूं। ये BMW का ना न्यूयॉर्क वाला ऑफिस है, ये इनका नया लोगो है, ये और ये इनका सी। माँ ये क्या नॉलेज है। हर जगह रियलिटी चेक था। उस समय जब उस रात को हम रिटर्न आ रहे थे पुणे के लिए, मतलब अपने कॉलेज पुणे के लिए, सब डाउन थे, हम हर फील्ड में आ रहे थे, पर मैं इतना लेके जा रहा था खुद के लिए, इतनी सारी चीजें लेके, हार के भी जीतते ना वैसी वाली फीलिंग थी। और हाँ यार ऐसी जिंदगी। अगले दिन से काम करने के तरीके ही बदल गए मेरे, मेहनत करना है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। सो फर्स्ट रियलिटी चेक मुझे लगता है भैया स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है। आप हार्ड वर्क करते जाओ, तुमको रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं कि अरे ये चीज तो ऐसे की जाती है और दूसरे ने की नहीं होती है, तो उसको लगता है अरे कितना स्मार्ट है ये, बट एक्चुअली इसने वहां कैसे पहुंचा है, हार्ड वर्क करके पहुंचा। आर यू ऑल विथ मी? तो अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है, पर्सनालिटी चेक करनी है, इज देयर एनी स्मार्ट वर्क करते रहना। पॉइंट 1 क्लियर। रियलिटी चेक में क्या समझेगा आपको पहली चीज, जब सर ने एजेंडा, मेरा एजेंडा नहीं था यार, I just digressed. But I still believe in smart work. If you know the way to find a solution, you'll know. Right? Ah. If you don't know, then you will keep banging your face on the wall again and again, and then you will learn. Agree. Trial and error. There will be 2 aspects of it, right? There will be one aspect that is trial and error. If you know already the error, then you will sort it out. Agree. And you will find that solution. Agree. That is the smart way of working. Right? Agree. मैं स्मार्ट में नहीं बोलूंगा, उससे मैं अवेयरनेस बोलूंगा। Awareness, yes. इट्स नॉट स्मार्ट वर्क। But still, you know that. For that, you need that perspective, right? अग्री। मैं अगेन वापस एक चीज को मैं एजेंडा पे, If you let me. हाँ श्योर, let's- बहुत अच्छा लगा। पहले तालियां बजाओ यार। आई होप कोई नॉनसेंस बात हो नहीं रही है यहाँ पे, कोई नॉनसेंस हो रही है नहीं We तो should agree to disagree. यस I am mature. बोलो सर। So, there are 2 ways to reaching a way, right? A point. I started from A, you started from B. Both we need to reach C. But already I knew a point that I have to get from A that way. Let's say आप जैसे you said कि ITM that is actually ITM Ghaziabad. You said IMT Gurgaon. You said it is IMT गाजियाबाद है, Ghaziabad. You said Gurgaon. MDI गुड़गांव, मैंने MDI गुड़गांव, ITM. ठीक है, I मैं am- you said that. Okay. So we are focusing on that way. But I knew, but still I'm following the B, your path. Then it is my foolishness that I'm following you, right? If I know already a way to do a thing, but still I'm not taking that path, I'm following you, then it is a foolishness. चलो एक करेक्ट करो, Yeah, sure. चलेगा? Yes, yes. या एक गलती दिख रही मुझे, चलेगा? हाँ? अब यहाँ पे रियलिटी चेक। मैम सर ने क्या पॉइंट रेज किया, समझा आपको? सर ने क्या पॉइंट रेज किया, समझा आपको? Sir just said like
अगर A point से B point तक जाना है तो sir has an alternative route which will help him to reach earlier. So sir said like following your route it will be a bit more Harder. late हो जाएगा थोड़ा. So probably sir used his alternative route to reach earlier. क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। क्या बोला सर का पॉइंट क्या था? का मतलब आपका जो रूट है वो अलग है और उनके लिए जो रूट है वो अलग है मोस्टली के लिए किसी एक पॉइंट पे। सर का ये पॉइंट था नहीं, राइट? सो मेरा कम्युनिकेशन पॉइंट, सर का पॉइंट था ही स्टिल बिलीव्स इन स्मार्ट वर्क। कम्युनिकेशन की बात करूं, आई शुड हैव अ पॉइंट, जो सर के पास पॉइंट था, यस नो, कि whatever you say sir, hard work is important, I agree, still I believe in smart work because it helps me save lot of time. ये उनका मेन एजेंडा था बोलने का। Am I right or wrong? Has it been communicated properly? That's my question. Next time, not only for you, not only for me, but even for all of us, if we have a point, it should be put in a proper manner. और उस पॉइंट को सपोर्ट हम कैसे करना चाहेंगे? एग्जाम्पल। आर यू ऑल विथ मी? तो अगली बार कोई भी मेरा पॉइंट हाफ वे कम्युनिकेशन पे नहीं जाएगा। So even if you want to communicate to anyone, even to kids, to yourself, to other person, मेरा पॉइंट मेरे को क्लियर होना चाहिए और मैंने इतने क्लियरली उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो सबको उसी तरीके से समझे। इनको पॉइंट ही नहीं समझा, इनको समझा तो इन्होंने एग्जाम्पल याद रखा, उन्होंने वेज याद रखे, बट मेन एजेंडा ही किसी ने याद। तो अपना सिर्फ इनका गलती नहीं है, या गलती या राइट एंड रॉन्ग नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। वापस में एक बार, लाइफ में राइट एंड रॉन्ग नाम की कोई चिड़िया, राइट? रतन जी टाटा का स्टेटमेंट, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट एंड रॉन्ग नाम की कोई चिड़िया नहीं रहती है, राइट? Can I make a point again? हाँ। It is not his statement. He has already cleared in an interview. मैंने जो सुना था, मैं फैक्ट्स पे बॉदर नहीं करना चाहूंगा। मेरे को देखो, मेरा सीधा फंडा है, मेरे को उसके फैक्ट से लेना देना नहीं। मेरा एजेंडा क्या है? मेरे को अच्छी चीज मिली, इनकलकेट की, आगे भाग जाओ। Being a teacher, my point is. Agreed. Being a teacher, I want to give my students a right thing. Agreed. The facts. Agreed. Rather than speaking. Like Agreed. I am not denying. मैं इसको डिनाई नहीं करता। मैं वापस बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज देखने के पर्सपेक्टिव होते हैं, यस नो, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। अग्री, राइट? मेरे को क्या सीखना है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता रतन टाटा नहीं आएगा मेरी जिंदगी में, But I cannot tell them the wrong. अग्री। मैं Again, मेरा एजेंडा नहीं है वो, राइट एंड रॉन्ग का एजेंडा ही मेरे को पॉइंट कम्युनिकेट करना है। बट या आई विल मेक अ पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम मेरे फैक्ट्स को मैं, बट मैंने जो रील्स में देखा, मैंने उनके मुंह से सुना है, ठीक है? मैंने इतना बॉदर नहीं करना किया, मेरे को पॉइंट सही लगा। मेरे को पॉइंट किसके मुंह से सुना मैंने उस वीडियो में? उनका ही पॉइंट है, वो बाद में क्लियर करे, मेरा नहीं था, उससे मेरे को लेना नहीं। मैंने तो किसके मुंह से सुना? सी ओके, और एक पॉइंट पे मैं बताऊं, ठीक है? हम कौन से पॉइंट पे अपनी एनर्जी लगाए, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। ऐसी ट्रिवियल चीजें जिस पे हम आर्ग्यू करके आउटपुट निकलने नहीं वाला है, उस पे हमें अवॉइड कर दो। बहुत बाद में आपके लाइफ में आएगा। हमें बहुत ट्रिवियल चीजों पे आर्ग्यू करने की क्या लगी हुई रहती है, विच इज गुड बैड डिबेटेबल। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? किससे भी मिले अच्छी पॉइंट ला। तो मेरे को एक ही चीज समझी उनके डिस्कशन से, और उनके मुंह से देखा था मैंने लैटर पार्ट नहीं सुना। 1 मिनट के रील में क्या क्या दिखाएगा आदमी, राइट? रतन जी ने बोला कि भैया आई टेक अ डिसीजन, मेक इट राइट। मेरे को एक ही चीज समझी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड, जो भी आप करो करते रहो, टाइम बताता है वो राइट हुआ या अच्छा। और एक चीज मैंने सिखाई, फिर जो रॉन्ग हो गया उसको कैरी करना है, सिर्फ उसमें से क्या लेना है, कहां मैं रॉन्ग हुआ, उसको मैं कैसे। अग्री? यस। इसको सम अप करना चाहता हूँ। हाँ, पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, किसने दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं, दैट्स इट।
अग्री, मेरा फिलोसफी। सर का जैसा कह रहा है कि वो नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं अगर उसको और बड़ा पिक्चर खोल के दूं आपको, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। देखो सर, जिंदगी, राइट? सारे अगर अमित लड्डा जैसे देंगे, दुनिया कितनी गंदी दिखेगी। सारे जाड़े, अरे हट, कितनी गंदी दिखेगी। So it's beauty of life is we are diverse. So I'm more into crux of things. He's more into peculiarities of things. He want to be more specific. इसके अपने assets हैं, मेरे अपने assets हैं। बड़ी स्टूडेंट फेस सर, उनको क्या चाहिए कि वो चीज समझना जरूरी है, वो कहाँ से आई है वो मैटर नहीं तो करता। मेरा वही कहना है कि मेरा कम्युनिकेशन क्लियर है अभी, आपके कम्युनिकेशन से किसका कम्युनिकेशन क्लियर है ज्यादा? मेरा पॉइंट ऑफ एजेंडा क्या था कि जब मैं कम्युनिकेट करूं, आई हैव अ पॉइंट जो मैंने क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। यस नो, विद एग्जांपल, विद पॉइंट्स। आर यू ऑल विथ मी? पर हर एक के अपने अपने डोमेन होते हैं। So, कितने लोगों को रियलिटी चेक समझता है? नहीं समझता है? यस नो? तो पहला रियलिटी चेक भैया, हम बहुत कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। ये रियलिटी चेक है। अगर आप कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हो, आपकी ग्रोथ नहीं है। जितनी ज्यादा चीजें आप करोगे, उतने प्रॉब्लम कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? उतने आप अनकंफर्टेबल होंगे, पर आपकी उतनी ही ग्रोथ ज्यादा रहेगी। अगले 2 साल में कैसे जीना चाहते हो यूनिवर्सिटी की लाइफ? कंफर्टेबल? कैसा जीना चाहते हो? What do you mean by uncomfortable? यार टॉयलेट आया, मैं नहीं करूंगा। I want to be uncomfortable, right? Is this the uncomfortable meaning? नहीं, क्या होगा uncomfortable का meaning क्या होगा? एक मिडिल सिस्टम है, uncomfortable का meaning क्या है? Try out new things that we haven't explored yet. Yes, no? तालियां बजनी चाहिए। इससे पहली अनकंफर्टेबल चीज बोलूं मैं, टाइम का रिस्पेक्ट। इस पे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए। अगर सेशन सर ने 11 का रखा है ना, इसके बाद यूनिवर्सिटी का बच्चा 11 के बाद एंट्री नहीं होनी चाहिए। सर नहीं स्टिक करेंगे। सबसे पहला अनकंफर्टेबल एटीट्यूड क्या है? कंफर्टेबल एटीट्यूड क्या है? अपने मन से चलो। फेकरे बन का फेकरे नियम। अग्रीड? राइट? ये हमारा कंफर्टेबल एटीट्यूड है दोस्तों। केयर फ्री बोलते उसे। अब फेक किसकी जरूरत है अपने को, अपन तो अपने जैसे। पॉइंट? अनकंफर्टेबल क्या है? टाइम के अंदर मुझे पहुंचना। यूनिफॉर्म अगर है, यूनिफॉर्म में पहुंचना। बात करनी है तो सेंस बात करनी है। प्रेजेंटेशन करना है, क्वालिटी करनी है। Yes, no? Yes. That's uncomfortable. So trying out new things, don't go for big things first. You want to be uncomfortable? Be in discipline. सबसे uncomfortable चीज होती है डिसिप्लिन में रहना। कितने लोग अग्री करते हैं? Can I see hands raised? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सबसे uncomfortable चीज है सर डिसिप्लिन में रहना। सबके लिए, अपने लिए भी, मेरे को भी लगता है। मतलब मेरा और मेरे बीवी का आधी बार झगड़ा क्यों होता है मालूम है? Can you guess? सुबह जल्दी नहीं, खाने के बाद जो टॉवल में जमीन पे फेंकता हूँ। मेरा काम नहीं है। 10 मिनट हम झगड़ेंगे, टॉवल रखने को 10 सेकंड थे। Being in discipline is one of the toughest things. सबसे uncomfortable चीज है। Yes, no? Yes. So don't want to do lot many things. Just be in discipline. आप successful हो, मैं बता दे रहा हूँ। Just be in discipline. Discipline कि भाई आप faculty हो सर, right? So आप disciplined हो, rule बना दो।
2 महीने में एक इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट करना है, मतलब दैट्स माय डिसिप्लिन। स्टूडेंट हो, 1 महीने में एक कॉलेज का कंपटीशन अटेंड करना है, बट एकेडमिक्स मेरा डिस्टर्ब होना, दैट्स माय डिसिप्लिन। यस नो, दैट्स सबसे अनकंफर्टेबल, क्योंकि सर को सबमिशन भी देना है, सारे प्रेजेंटेशन भी रेडी करने हैं, कंपटीशन के लिए भी रेडी करना है। इन शॉर्ट, अब वो 9 to 5 वाला फंडा ही बचा नहीं। स्ट्रेच, पहली चीज जो एमबीए हमको सिखाना चाहिए, हमने उससे निकालना चाहिए कि अब टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई काम करने को मुझे 12 घंटे लग रहे हैं, I'll ensure कि I'll spend that 12 hours। फिर उसके लिए जो डिस्कम्फर्ट आएंगे कि दूसरे मेरे दोस्त गणपति एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे तक प्रेजेंटेशन देना है। अनकंफर्टेबल सिचुएशन है दोस्तों, समझ रहे हैं? एक बात बताओ, जितना आप अनकंफर्टेबल होंगे उतनी आपकी क्या अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। और हर एक जन ये चीज तो मानता है कि जिंदगी जी रहे तो ग्रोथ तो होना चाहिए यार। यस नो, लाइफ इज ग्रोथ। यस नो, लाइफ इज ग्रोथ। तालियां बजनी चाहिए। सबका क्या हुआ है? गदर हुआ है। लाइफ इज ग्रोथ। यस नो, अपने अपने मायने हो सकते हैं ग्रोथ के। किसको 15,000 के पगार के बजाय 25,000 का पगार मिल रहा है, वो ग्रोथ होंगी। कोई बोलेगा 25,000 नहीं भैया 50,000 चाहिए, उसके लिए क्या क्या काम करना है, वो ग्रोथ होंगी। यस नो, हर एक के ग्रोथ के मायने क्या हो सकते हैं? लेट इट बी, दैट्स वेयर द लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अग्रीड? सो रियलिटी चेक, पहला पॉइंट जो मुझे दिखता है, अगर आप कंफर्टेबल हो दोस्तों, यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग। तो अगली बार कोई टीचर आए, कोई गेस्ट आए, कोई आए, यहाँ आके बोलना है। अनकंफर्टेबल होगा, फिर भी वोट ऑफ थैंक्स देना है। पानी का बोतल वो स्टाफ अरेंज करता है, बिल्कुल नहीं, मैं पहले आऊंगा। क्या क्या मैनेजमेंट करना है, सर आपको कैमरा अरेंज करना है क्या, सर आपको साउंड सिस्टम चाहिए क्या, ये आपको करना है क्या। आप आए थे शायद मेरे को पूछने, साउंड लगेगा, मैं करा। कितना अच्छा लगता, बच्चा आएगा करके पूछेगा। मेरा इंप्रेशन क्या है मालूम है? यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत भारी है, यूनिवर्सिटी रूल्स बना के रखती है। यस नो, ऐसा मैं, फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी, चौथा, जो भी आएगा उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बनेगा कि यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या है। तो सिर्फ तुमने क्या चीज सुधारी कि वो कंफर्ट जोन से निकले, टाइम को रिस्पेक्ट किया, और उसके लिए जो जो चीज करनी है वो करवा। आर यू ऑल विथ मी? राइट? रियलिटी चेक्स, डू यू वांट टू बी कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल? सुसु वाला अनकंफर्टेबल नहीं। यू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। समझो आप 10 चीजें करने वाले हो, उसमें से 9 में आप फेल होंगे, चलता है, डर नहीं होना उस फेलियर का। चलेगा नहीं चलेगा? एक चीज जो निकलती ना दोस्तों, सारे 10 फेलियर छुपा। जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस है, 10 बिजनेस चलाते हैं, 8 डाउन में चलते रहते हैं, और 2 ऐसा प्रॉफिट देते कि इनका डाउन भी ऊपर लेके चलते। जस्ट चेक कीजिए, आप एमबीए वाले बच्चे हो ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? राइट? 80-20 प्रिंसिपल है लाइफ। रियलिटी चेक, कितने लोगों को समझ रहा है, सही है गलत है? राइट? कैसा जिंदगी जीना चाहोगे अगले 2 साल? मस्त आओगे गाड़ी पे, लोकल हो आउटसाइडर हो? सिटी में मस्त आएंगे, 11 बजे का सेशन है, 10:30 बजे निकलेंगे, राइट? 5 बजे कॉलेज छूट रहा है, 3 बजे गायब, राइट? कंफर्टेबल नहीं यार, मेरे को ये चीज़ खत्म करनी है, ये चीज़ देखनी है। मैं ना अभी बात कर रहा था सर से, आपके लाइब्रेरी में जो इतना बड़ा कलेक्शन है, बोले लोग बुक ही नहीं इशू कर रहे, बोले बच्चे। एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी अपनी जलगांव में है, मेरे को तो आज पता चला। सीरियसली, कितने गधे की रीड भी नहीं करते, बिकॉज रीडिंग इज कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट।
उससे जो नॉलेज मिलता है हमें आगे क्या कर रहा है, कंफर्टेबल। ये सुनो, अगर आप जियोगे तो आप आगे बढ़ोगे। डिस्कम्फर्ट लाइफ, वो डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है फिर आपकी। फिर किसको हफ्ते का एक बुक खत्म करना है, राइट, किसी को महीने का एक बुक खत्म करना है, और वो आदत बनानी पड़ेगी। वो डिसिप्लिन क्या करना पड़ेगा, तो रिस्पेक्ट टाइम, रिस्पेक्ट योर नॉलेज, रिस्पेक्ट योर इंफॉर्मेशन, यस नो, इन सारों के लिए पहले डिस्कम्फर्टेबल होना पड़ता है। नहीं यार नहीं, आलस नहीं रखना, आराम नहीं चाहिए, आराम। Agreed? So that's my first agenda of reality check. Huh? And that's where I don't like the philosophy of smart work. रास्ते मिल रहे हैं, use it. I'm not denying. उसके लिए अवेयरनेस लाना पड़ता है। अवेयरनेस को भी लोग इतने निठल्ले, अवेयरनेस भी नहीं होता है। अवेयरनेस को भी डिस्कम्फर्ट होना पड़ता है। क्या ये काम कोई अच्छा तरीका है क्या, चल देख तो करवा ले। अग्री, यस और नो, उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। मेकिंग सेंस? सो फॉर मी अगेन, स्मार्टनेस के बजाय मैं उससे अवेयरनेस नाम देना चाहूंगा कि मुझे बहुत सारी चीजों का अवेयरनेस है, क्या मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं ये चीजें, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट टू डिसिप्लिन। समझ रहे नहीं समझ रहे? सेकेंड रियलिटी चेक, सेकेंड पॉइंट, शैल आई? यस नो। कितने लोगों को यह पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मोदी जी को सुना 2014 में 125 देश, 125 करोड़ मेरे देश के, 2019 में 130 करोड़ देशवासियों। अब क्या बोलते हैं 2024 के लिए? एक चीज में हमारी ग्रोथ पक्की है। Agreed? Yes, no? तो ये मेरा पहला एजेंडा था, बट आई जस्ट बट व्हाटएवर, जब आप डिस्कस करते हो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं दोस्तों। मेरा पहला पॉइंट भी बहुत अच्छा था, बी अनकंफर्टेबल फॉर अ ग्रोथ, राइट, निकाल दो। दूसरा, तुम्हें पता है कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? 2% से भी कम। नहीं सर, थोड़ा ज्यादा है। नहीं सर, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें 2% से मैं कम इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में फिर 3% तक है। कुछ 4.5% है। नहीं सर, 1.76% है इंडिया का। देख लो, मेरी रीडिंग में है सर। देख लो ना, अच्छा हो जाएगा, टैक्स पे अपन काम करें। मेरे हिसाब से अराउंड 6 करोड़ प्लस लोग टैक्स भरते हैं, राइट? मेरी जानकारी के अनुसार 1.76% है सर। नहीं ज्यादा है मेरी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। मैं आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा हूँ, बट अपन वी कैन क्रॉस। अच्छा मुझे जान दो, चलो मेरा पॉइंट कुछ और है। अपन ने अभी बोला कि जो पॉइंट अपना वो हिट होना चाहिए। संख्या में क्या 1 करोड़ 2 करोड़ से फर्क पड़ने वाला, तेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? मेरे भी नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे भी नहीं पड़ने वाला। चलो छोड़ देते हैं डेटा को, राइट? डेटा को छोड़ देते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट गो बैक एंड लिटरली अगेन चेक वन मोर टाइम, राइट? हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे अपडेट कर दे। जरूर सर, चलेगा? जरूर सर। सो मुझे बताओ, 140 करोड़ लोगों को 5 करोड़ लोग पाल रहे हैं। मेरे हिसाब से रफली 4-4.5% के रेंज में जाता है मेरे हिसाब से। मैं राइट रॉन्ग हूँ, पर मेरे लिए मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने लोगों को समझा मुझे क्या बोलना है। इस 5% से कम जनता इनकम टैक्स भरने की औकात रखती है। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब क्या है? अरे वाह, व्हाट अ मीनिंग, राइट? अगर 5% जनता अगर इनकम टैक्स भर पा रही है तो 95%। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत भारी है आपका, हेलो, राइट? तो उसका तीसरा मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस क्या है उसका? इनकम कम है, 95%। 95% जनता की इनकम क्यों कम होती लोगों की? सर ते रिस्क घ्यायला घाबरता सर. हा? जेवढे मोठे लोक आहेत सर बिझनेसमॅन हाँ
ते रिस्क घेऊन बिझनेस डेव्हलप करतात सर म्हणजे आणि त्यामुळे त्यांची इन्कम जास्त असते पण हे रिस्क घ्यायला घाबरतात सर हे बाकी ये 95% लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते, रिस्क ही नहीं लेना चाहते, शहर ही नहीं छोड़ना चाहते, माइग्रेट ही नहीं करना चाहते, कंफर्ट जोन में रहना अच्छा चाहते। फिर मुझे एक बात बताओ, 95% जनता कंफर्ट जोन में है। 95 मतलब कौन होते हैं मालूम है? अगर मैं 100 लोगों को देखूं ना, हर आदमी ऑलमोस्ट हर आदमी कंफर्ट जोन में है। तो अगर आप आपके आजू बाजू वाले को देख के जिंदगी जीना चाह रहे हो, आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो? 5% या 95%? पहला अनकंफर्टेबल चीज, अपना बाजू वाला जो कर रहा है वो नहीं करना। दूसरी अनकंफर्टेबल चीज, यहां से पास आउट होते होते औकात इतनी बना लेनी है कि सामने वाला मुझे इनकम टैक्स भरने जितना पैसा दे सके। रियलिटी चेक, ये सुनो। तीसरा मतलब ओनली 5% जनता स्किल्ड है, जिसमें हम भी है। ये राइट टाइम है जहां हमने अनकंफर्टेबल होना चाहिए। ये 2 साल कंफर्ट में नहीं गुजरने। नॉलेज, प्रेजेंटेशन, स्टाइल सब में आगे बढ़ना। कम्युनिकेशन एक दिन में होगा? एक दिन में होगा? बोल के होगा? थियोरेटिकली होगा? थ्योरेटिकली होगा? कैसे होगा? हाँ? नहीं, हार्डवर्क से नहीं, ठीक करना पड़ेगा। मतलब मैंने तुमको कल बोल दिया, आओ बच्चों मैं तुम्हें कल स्विमिंग क्लास सिखाता हूँ, स्विमिंग सिखाता हूँ, स्विमिंग। देखो ये पानी होता है, पानी में सांस नहीं लेते आती। अगर पानी में तुम नाक खोलोगे तो मर जाओगे। तुम्हें टाइम टाइम पे बाहर आना है, हाथ पैर मारते रहना है, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें स्विमिंग आ जाएगी। ऐसे बोल के होने वाला है। के बड़े दोस्तों, राइट? एक वीडियो में प्ले करवाना चाहूंगा सर, प्लीज। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमने इंग्लिश की क्लासेस लगाई है और हमें हमारे मन लायक रिजल्ट्स नहीं मिले। आज भी मुझे प्रॉब्लम है वोकैबुलरी के साथ, रीडिंग के साथ, ग्रामर के साथ। द वेरी रीजन इज हम एजुकेशन में 2 स्टेज प्रोसेस में अटके पड़े। स्टेज 1 लर्निंग, स्टेज 2 चेकिंग, टेस्ट के थ्रू। बट आइडियली अगर इस पूरे प्रोसेस को मुझे सही ढंग से एग्जीक्यूट करना है तो याद रखिएगा इन 2 स्टेप के बीच में आपको 3rd स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लगाना, और वो स्टेज है मेमोराइजेशन। लर्निंग, मेमोराइजिंग एंड चेकिंग। अगर आप इस फुल सर्कल पे काम करोगे तो ही जाके कोई प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल रहे, जिसमें मेरे हिसाब से लर्निंग को 10 to 15% ही वेटेज जाना चाहिए। 70% वेटेज आपके मेमोराइजेशन को जाना चाहिए, और अनदर 50% वेटेज आपके रिजल्ट्स पे, यानी आप जो टेस्ट दे रहे हो, टाइम प्रेशर हैंडल कर रहे हो, उस पे जाना चाहिए। सो अगर आप नोटिस करोगे मुझे क्या दिखता है, 15% लर्निंग टाइम, 70% मेमोराइजेशन, 50% टेस्टिंग, एंड रेस्ट अश्योर आप सक्सेसफुल। दोस्तों, a complete circle for enhancing your vocabulary, ये टीचर फैक्ट्री का पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। Don't miss out on such a beautiful approach of enhancing your personality. कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने यहाँ रेज किया? एक पॉइंट रेज किया मैंने, थ्योरी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? राइट? सक्सेसफुल बनना है ना, ग्रोथ लाना है लाइफ में, थियरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस नो? कितना %? अब हम क्या करते हैं,
थ्योरी को ही ड्रैग कर देते 100%। पहली चीज, हम थ्योरी को बहुत फास्ट निपटाएं। हेलो, यस नो? थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब मैं रियलिटी में उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, वो जो 70% टाइम है जहां मैं वो थ्योरी को मेमोराइज भी करता हूं और उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाता हूं, उसके लिए मुझे थ्योरी पता होंगी तो इंप्लीमेंट कर पाऊंगा मैं। यस नो? तो कितने परसेंट टाइम में थ्योरी खत्म होनी चाहिए? 15%। अगर मैं 100 घंटे किसी चीज को दे रहा हूं, 15 घंटे में थ्योरी निपटा दो। हेलो हेलो, राइट? 70% टाइम उसको मेमोराइज करने में, उसको सिंक इन करने में, रियल लाइफ से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यस नो? लास्ट के 15% टेस्ट करना है कि सच्ची में मैंने सीखा है या कितने लोगों को समझ रहा है। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उस फील्ड का 15% नॉलेज, 15% टाइम में नॉलेज उठाओ मैक्सिमम, जिसको हम स्मार्टनेस कह सकते हैं सर के एंगल से। क्या अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यस नो? 70% टाइम हमारा उसे रियलिटी में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जाना चाहिए। समझ रहे हैं? लास्ट का 15% टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। टाइम प्रेशर में हम कैसे परफॉर्म करते हैं ये जानना बहुत 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 जरूरी। कितने लोगों को सेंस हो रहा है ये बात? सो अगली बार मैं जो भी काम करूंगा किस फिलॉसफी से करूंगा? 15% लर्निंग, करेक्ट? कौन से फील्ड के लिए वैलिड है? राइट? अगर मैं लर्निंग के बगैर जाऊं ना, तो जैसे सर ने आर्ग्यू किया, ट्रायल एरर के टाइम क्या लगेंगे मेरे? ज्यादा रहेंगे। ट्रायल एरर के टाइम क्या लगेंगे? फिर आपको वो देने की क्या होनी चाहिए? मानसिकता। और वो देना है तो आपको ढोर मेहनत करनी, हार्डवर्क ही तुम्हारा साथीदार है वहां। यस नो? सो 15% लर्निंग, 70% एंड करेक्ट? दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर ये प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो, फिर कोई भी फील्ड में जाओ, फिर मुझे मार्केटिंग सीखना है, ब्रांडिंग सीखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है, राइट, एचआर सीखना है, आईटी सीखना है, 15% टाइम समझो, मैंने टाइम फिक्स कर देना है, फिर 20 घंटे में होशियार करना है, 3 घंटे में थ्योरी को दूर, 10 घंटे उसमें कुछ तो 15 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, वापस 2 घंटे में चेक दूंगा टेस्ट देके कि क्या हो रहा है क्या। आर यू ऑल विथ मी? यस नो? बोलना कितना आसान है, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग नाउ, सेकंड रियलिटी चेक जो मुझे दिखता है कि पहला सिर्फ 4 से 5% जनता सिर्फ क्या भर पा रही है, कौन से कैटेगरी में जिंदगी जीना पसंद करोगे? 5% में? सच्ची? यस नो? क्या लगता है आपको मिल जाता है? इतना इजीली मिलेगा आपको लगता है? हाँ? क्या लगेगा आपको? चलो एक काम करते हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके कारण आप वहां शिफ्ट हो सकते हो? 5% वाले कैटेगरी में शिफ्ट होना मिलता, राइट? क्या लगता है सर ऐसा करो हो जाएगा, ये करो हो जाएगा, ये करो, आई थिंक हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्या लगता है कौन सी स्किल्स आपके पास चाहिए? Being passionate. Can I see hands raise? Can I see hands raise? हाँ, और हाथ ऊपर करके फिर बोलना है, क्योंकि सब एक साथ बोलेंगे तो पॉइंट मिस आउट हो सकता है, राइट? यस, गलत तो गलत, कोई राइट और रॉन्ग होता ही। बोलिए सर। सॉफ्ट स्किल्स सर। सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है? बिल्कुल है। अच्छा यार, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे को। हाँ, मैंने एक पॉइंट रेज किया था, जो भी आप पॉइंट रेज करो उसको फुल सर्कल करो। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल्स में फिर टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये चीजें आ गई। टाइम मैनेजमेंट ये सॉफ्ट स्किल में आता है जी। कम्युनिकेशन ये सॉफ्ट स्किल में आता है। मतलब मैं बड़बड़ करते रहूं तो मेरे को पैसा मिल जाए? नहीं सर, पर कम्युनिकेशन स्किल ऐसी भी ना हो ना कि वो उस जगह के लिए मैच ना हो।
कौन सी जगह के लिए? जैसे कि अगर हमें कौन सी फील्ड है जहां कम्युनिकेशन से पैसा मिलता है? हर फील्ड में मार्केटिंग से। सिर्फ मार्केटिंग में कम्युनिकेशन से पैसा मिलता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मिलता है? अरे मेरे फील्ड में आ जाओ, टीचिंग। टीचर बनना है, एक तो नहीं है। यस सर, करेक्ट, क्या बात है। सो सॉफ्ट स्किल ये बहुत बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है दोस्तों। बहुत बड़ा कौन सा स्पेक्ट्रम है? अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आई होप मैं समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। तो कोई भी चीज हम करते हैं ना, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातों से ना रिजल्ट नहीं आते। I mean, बड़ी बड़ी बातों से आपकी हर पॉइंट इतना पिन पॉइंट होना चाहिए कि वो डायरेक्ट आर पार जाना चाहिए, तब रिजल्ट बनते हैं। पॉइंट टेकन? यस नो? सो जब लोग कम्युनिकेशन स्किल बोलते ना यार, सिर्फ मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधर गई ना तो भी 10 लाख कमाता मैं, सिर्फ कम्युनिकेशन। सोचते क्या कि कम्युनिकेशन स्किल सुधरने से 10 लाख कैसे कमाएंगे? मंथन करते इस पे आज। हाँ? गलत तो कौन जज करने वाला है? अमित, क्या लेना देना? आएगा 2 घंटे बड़बड़ करेगा, जाएगा, कुछ तो निकल के आएगा। कम्युनिकेशन स्किल से 10 लाख कमा सकते हैं क्या? राइट? तो बोलो, चलो पहले ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का आपके लिए मतलब क्या है। क्या है आपके लिए कम्युनिकेशन का मतलब? एनीवन, गलत तो गलत। कम्युनिकेशन से 10 लाख मिलने वाले हैं और अगर उसका मेरे को मतलब ही नहीं पता है, कैसे चलाऊंगा मैं? हाँ, अपनी फीलिंग को स्प्रेड करना, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। To express your thoughts. थोड़ा फन करने वाला था मैं यहाँ पे, माहौल थोड़ा अलग जा रहा है। नहीं तो बिना कम्युनिकेशन की वो भी हाँ नहीं बोलेगी। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, यस नो? पर यार अब कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल और एक रिजल्ट ओरिएंटेड। राइट? नॉर्मल कम्युनिकेशन जो अपन नॉर्मली बात करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेशन में एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में हम बात करेंगे, सामने वाला इंप्रेस होगा, उस एंगल से अपने को कम्युनिकेट रिस्पॉन्ड करेगा। राइट? कौन से कम्युनिकेशन की बात करें अपन? नॉर्मल कि एक लेवल प्लस? एक लेवल। बट अभी भी कम्युनिकेशन कितनी बड़ी चीज है ये कोई बता नहीं पा रहा है। क्या क्या आता है कम्युनिकेशन में? To express your thoughts in a right manner. माय गॉड, It's थ्योरेटिकली हम बहुत परफेक्ट है यार। एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन right manner. राइट मैनर। अब मैं अगर इसको भी पूछूं, मतलब क्या? अपने विचारों को सही ढंग से पेश करना, इसे कम्युनिकेशन कहेंगे। मैं अगर इसको तोड़ के चलाऊं, राइट? कम्युनिकेशन के अलग अलग एंगल हो सकते हैं। एक बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होगा, राइट? दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तीसरा Sign. Eye contact. रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। चौथा साइन, Sign. इशारों से। जैसे कि हम रोड पे जाते हैं, राइट के लिए साइन। किससे पैसा मिलेगा? अपना एजेंडा क्या है? कम्युनिकेशन सीखना एजेंडा है। मेरा पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन से पैसा कैसे बनेगा, ये एजेंडा अपना। एजेंडा भूलना, बाकी सब एग्जांपल्स हैं। मेन पॉइंट पकड़ते आगे रास्ते क्लियर होते हैं। यस नो? राइट? तो कम्युनिकेशन, कौन से कम्युनिकेशन से पैसा मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा? वर्बल और रिटर्न दोनों से सर। स्टाइल। लोगों को क्या अच्छी लगती है? मारने का। राइट? यस नो? यार गलत नहीं है। हम इतने हेजिटेंट हैं चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए कि जिसकी लिमिट नहीं।
अभी भी अपना एजेंडा क्लियर नहीं कि कम्युनिकेशन से हम 10 लाख कैसे कमा सकते हैं। और आपको बोलना है, मेरे को तो पता है मैं 30-40 लाख कमाता यस सर। कौन से ऐसी कम्युनिकेशन जिससे हम अपनी बातें मनवा ले दूसरों को। नहीं यार, कोई मानता नहीं, मान कोई किसी को सुनने का टाइम नहीं किसी के पास। तो वो तो अपनी स्किल है ना कि वो ना सुने तो भी हम बातें मनवा ले। तो हम किसी को अपनी बातें कैसे मनवाएंगे? अगर हम किसी को अप्रोच करेंगे मिनिमम वो 2 मिनट तो देगा ही। यार तू ऐसी जिंदगी जिया नहीं जहाँ लोग हकाल देते हैं। वो तो होता है। मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। यस सर। हाँ, तो पहली चीज कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ मनवाना नहीं होता है। क्या मैं तुम्हें मनवाने के लिए आया हूँ? डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, उसको भी अप्रिशिएट करना भी क्वालिटी होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मेरी मुर्गी की एक टांग नहीं रखो तो चलोगे। But anyways, that's a do's and don'ts of communication, right? So communication से अपना एजेंडा भी सॉल्व नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन से मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, क्या क्या करूंगा, कौन से फील्ड में जाऊंगा जहाँ से 10 लाख रुपए मिलेंगे मुझको। सर रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन से, जैसे कि देखिए जावेद अख्तर रिटर्न कम्युनिकेशन करते करोड़ों में कमाते, चेतन भगत रिटर्न कम्युनिकेशन करते लाखों में कमाते, कुछ जो बड़े एंकर है जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में एफा में देखते हैं जो एंकर लाखों करोड़ों फीस चार्ज करते। तो रिटर्न मतलब अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो वन ऑफ द फील्ड जो मुझे दिख रही है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। इसके अलावा इसमें सर और बहुत ब्रॉड है फिर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम तो क्या के लिए डिस्कस कर रहे हैं, हम तो लिस्ट कर रहे हैं जी कि कम्युनिकेशन से पैसे कहाँ से आएंगे। इसमें से 2 मुद्दे मेरे ऐड कर लीजिए। वही तो मैं ऐड कर रहा हूँ ना, पहला राइट, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, यस नो, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग कहाँ यूज होता है कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग सर आज कई बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस है उनके लिए कंटेंट राइटर लगते हैं, फिर जो कई बड़े बड़े बिजनेस ब्रांड है उनके लिए कंटेंट राइटिंग लगती है। 6 लाख रुपए मिलेंगे क्या इस काम से? अभी लोग उसको नहीं चलाते सर। फिर अब कंटेंट राइटर बनते कैसे? पॉइंट समझा कैसे उल्टा सोचना है, राइट? पॉइंट समझा कैसे उल्टा सोचना है, राइट? अब नेक्स्ट सवाल है सर, अभी मैं ना कम्युनिकेशन में और दूसरे फील्ड की अपन बात ही नहीं कर रहा, तो अगली बार मंथन करना है ना दोस्तों में, ग्रुप डिस्कशन करना। GDPI सुना है अपन ने, एक फील्ड लेने का, कोई भी फील्ड लेने का, इस फील्ड में पैसा कैसे कमाया जाता है, पहले मेथड तो समझो, तरीके तो समझो यार, इसमें ऐसा पैसा कमाया जाता है, ऐसा पैसा, क्योंकि अपना एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा क्या है, इनकम टैक्स भरने वाली औकात में घुसना है। मेन एजेंडा क्या अपना, पहले अवेयर करते हैं, यस नो, रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस है ये? नहीं, बट हम टाइम ही नहीं दिए उस चीज को। हमने अपना टाइम इतनी नॉनसेंस चीजों में डाला हुआ है कि सेंस के लिए टाइम ही नहीं बचा अपने पास। मुझे एक बात बताओ, अगले 2 साल आपने सिर्फ कंटेंट राइटिंग के अलावा दूसरी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। जो भी चीज कंटेंट राइटिंग से जुड़ेगी वो मेरी काम की, बाकी चीज में मेरे को लेना देना। मुझे बताओ 2 साल के बाद कैसे रहोगे आप? एवरेज, अबव एवरेज, यस नो? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चूज द फील्ड, किधर घुसना है। चूज करने से पहले फील्ड पता करो कि कौन सी फील्ड्स होती हैं, समझ रहे हैं? उसके लिए बैठो, मंथन करो, सबको टाइम दो। आज ये हफ्ते ना ग्रुप डिस्कशन करेंगे अपने ही दोस्तों में, ये फील्ड को पूरा जानेंगे, यहाँ से पैसा कहाँ से आता है, फिर उसमें से अपने को हाँ यार ये कर सकते हैं अपन। कंटेंट राइटिंग आपको जमता नहीं, इंग्लिश के वांदे, ये सुनो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। MBA का पहला पर्पस जो मुझे दिख रहा है ना, यहां से निकलने के बाद
दुनिया को मैं बड़े एंगल से देखते आना चाहिए मेरे। यस नो? एमबीए का पहला पर्पस क्या रहेगा आपका? यहाँ से पास आउट होने के बाद मैं दुनिया को बड़ी नजर से देख रहा हूँ, लिमिटेड नजर से। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? ताली बजनी चाहिए आई थिंक। यहाँ से पास आउट हो जाता है, मेरे पास क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 10 एरियाज है जिनमें मैं काम कर सकता हूँ, जिसमें मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है। इतना तो नॉलेज तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। इसके लिए जो जो करना है आपको एफर्ट्स, उसके लिए आपको अनकंफर्टेबल हो, उसके लिए फिर स्मार्ट वर्क चलाओ, इंटरनेट यूज करो, लोगों को मिलो, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टा का यूज करो, फेसबुक का यूज करो। आज तो सोशल मीडिया तुम्हारे पास सब कुछ है। और वो कुत्ता कैसे उसके एक्शन पे नाचता है वो रील देखने के बजाय काम का थोड़ा देख लोगे, ये सुनो, भागेंगे आगे कि नहीं भागेंगे? यस नो? वाओ, एक एग्जांपल से आई विल फिनिश माय पॉइंट। कितने लोगों ने स्कूल में वो लेंस वाला भींग वाला एक्सपेरिमेंट किया है क्या? लेंस वाला एक्सपेरिमेंट। कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ? वो नहीं समझा। सनलाइट के नीचे वो लेंस, सनलाइट के नीचे वो लेंस पकड़ के नीचे वो पन्ना होता है। कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट, सेंट्रल आइडिया को हर बार पकड़ना। आप एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हो, मेरा एजेंडा क्या है बोलने का? मनी नहीं, ये तो कर रहा है इसलिए मन, और बॉडी लैंग्वेज। ये सुनो, ये सुनो, बोलो सेंट्रल एजेंडा क्या है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेंस का अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो अपन क्या करते हैं? अपन बीइंग नॉनसेंस, अपन क्या सीधे है क्या? सीधी औलाद? नॉनसेंस पसंद है अपने को? इसके बाद नहीं। इसके बाद अगर मैं 90% नॉनसेंस कर रहा हूं, अब मैं नॉनसेंस करना मेरा कंफर्ट जोन है, यस और नो? अब मैं 80% नॉनसेंस करूंगा, 20% में सेंस लाऊंगा। 3 महीने बाद 70% नॉनसेंस, 30% सेंस। 6 महीने बाद 50% नॉनसेंस। साल भर के बाद अपने घर वालों ने भी बोल देना चाहिए तू बदल गया। यस नो? हेड स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है दोस्तों, मजाक नहीं है। सुनने में सब अच्छा लग रहा है, करने के लिए जो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है ना, एक बात बताओ, अपने को ही फेस करनी है, दूसरा आता नहीं उसको, क्योंकि ग्रोथ किसको करनी है? ठीक है, बी रेडी फॉर दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग। अगर आपको आगे बढ़ना, आई कैन गाइड यू, आई कैन टेक यू थ्रू। चाहिए वैसे जुड़ना होगा तो बताना, यस नो? सो नेक्स्ट आ जाते हैं भीम के एक्सपेरिमेंट पे। तो क्या होता है? वो लेंस होता है, अपन पेपर रखते हैं, लीविंग नॉनसेंस, मस्ती करते हैं, फिर लेते हैं उस लेंस को से टूंटा करते रहते हैं अपन। क्या होता है उससे? कुछ होता है क्या उससे? सनलाइट में जाते हैं, राइट? और वो पेपर नीचे रखते हैं और वो लेंस से ऐसा ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्या होता है उससे? कुछ होता है क्या? क्या होता है? पेपर फायर होता है। कब? सर आपण आपल्या पूर्ण शक्तीला, पूर्ण पोटेन्शियलला एका जागेवर केंद्रित केल्यावर तो पेपर करतो। आजपर्यंत आपण तेच केलेलं नाहीये की आपल्या पोटेन्शियलला एका ठिकाणी केंद्रितच नाही केलंय। हमने आज तक अपनी, कितने लोग मानते अपन किसी से कम नहीं? कैन आई सी हैंड्स रेस? कैन आई सी हैंड्स रेस? आप किसी से कम हो? करो करो हाथ, ये हवा में होना चाहिए, राइट? किसी को ही लगता अपन किसी से कम है, फिर भी सारा दूसरा अपने से आगे कैसे जाता रहे? जो हमारी एनर्जी है ना, हमारी सनलाइट, हमने इतनी जगह बिखरा के रखी है कि वो एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते। अग्री? हमारी एनर्जी हमने कितनी जगह, कितने लोग मानते हैं एनर्जी एक जगह की बिखरी हुई है?
राइट कैसे? राइट सोशल मीडिया। रात को सोने से पहले तो 2 घंटे अगर रील्स नहीं देखी ना बेटा, नाम का अमित नहीं है ना, राइट? फिर दोस्त, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पप्पा मम्मी का पता नहीं कौन लाके रख देगा, अपनी कोई प्लानिंग करना है। अरे बड़ा इंडिया है रे, हर एक की शादी होती रे इधर, तो अपन ही प्लानिंग करते उस चीज, जिसके लिए नहीं करना उसके लिए पहले प्लानिंग। एनर्जी कितनी फोकस रहती है अपनी वहां पे, सब पता रहता, रूटीन क्या है, कौन सी क्लास जाते हो, क्या अच्छा है, एनर्जी। दूसरी चीज, मुझे फोकस एरिया क्या है यही नहीं पता है। हर बार हम बात करते हैं बड़े डोमेन की, अम्ब्रेला की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, इतनी बड़ी चीज है, वो आग लगाएगी नहीं। एक को पकाने का घुसा डालने को पूरा, समझा? तो रिजल्ट देती। अग्री? अब रिजल्ट कैसे लाना, उसके लिए मैं अगले सेशन में ब्रेक लेना चाहेंगे अपन, यस नो? अगला सेशन कब है? करना है अगला सेशन की नहीं करना है? राइट? आओगे? चलेगा?